All right. So in the last session, in the last couple of sessions, we quickly did this concept, Newton's laws of motion वाला इसमें सिर्फ एक ही equation है, result of force equals mass into acceleration. We discussed this. In the last session, we also did a couple of practice questions on this. We did question number 54 from the worksheet. And we also did question number 22 from the worksheet. ठीक है, ये दो questions हमने last class में किए थे. Now today I'm going to start with some examples जिसमें multiple particles हैं और वो connected हैं एक दूसरे के साथ. वो problems हम discuss कर रहे होंगे. Now there were some questions assigned on classroom. I hope आप लोगों ने उनमें से कुछ attempt किए हो. How many of you have attempted at least 5 questions जो मैंने assign किए थे? Can I raise of hands? किसी ने किए हैं? Okay, only Hamza. All right, चलिए. I'll start with a couple of examples और उसके बाद फिर आप मुझे बता सकते हैं if there are any specific questions that you have issues in, फिर हम वो discuss कर लेंगे. ठीक है? I'm going to start with a simpler example on connected particles. जब दो multiple particles एक दूसरे के साथ connected होते हैं, वो एक example हम देखते हैं. उसके बाद फिर आप मुझे बता सकते हैं if there are any other problems from the worksheet. All right, so this is mechanics, friction worksheet. This is what we have. अच्छा, ये worksheet जो है, if you get a chance to go to school, अगर आपको printed copy चाहिए, I was supposed to give them to you today, but क्योंकि अब online हो गया आज, तो सर कासिम के टेबल पे ना ये आपको copies मिल जाएंगी. So if अगर आप जब भी next आप जाते हैं school, you will have them there on Sir Qasim's table. तो अगर आपको उसकी printed copy चाहिए worksheet की, sorry marking scheme कर गया है, तो इस worksheet की अगर आपको printed copy चाहिए, आपके पास नहीं है पहले, you can get it from Sir Qasim's table there. Okay. All right, let's start with this. This is question number 7 from the worksheet. ये हम start करते हैं. All right. Particles P and Q, they are attached to opposite ends of a light inextensible string. ये आपको नजर आ रहा है. These are two particles, P and Q. They're connected by the string. P is at rest on a rough horizontal table. Rough table है, इसका मतलब है friction होगी. And it's at rest right now. Okay, so abhi it's at rest. The string passes over a smooth, small pulley, which is fixed at the edge of the table. So this is the pulley that's fixed here. Q hangs vertically below the pulley. We आपको नजर आ रहा है. This is where the string, where the particle Q is hanging. The force exerted on the string by the pulley has magnitude 4 square root of 2 Newton. So this is 4 square root of 2. That's what it says. The coefficient of friction between the between particle P and the table is 0.8. So that's another piece of information that we've got. Force exerted on the string by the pulley is 4 square root of 2 Newton, and the coefficient of friction is 0.8. Now the first part says, show that the tension in the string is 4 Newton, and also state the mass of Q. All right, now first of all, let's think about all the forces that are acting on these two particles. Let's think about particle Q first. Q के ऊपर कौन-कौन सी forces लग रही होंगी? There is weight of Q that's acting downwards, right? वो कितना होएगा? ये हमें नहीं पता, ये तो हमें फाइंड करना है. Mass of Q फाइंड करना है, तो हम उसको weight से represent कर लेते हैं. ये हमें नहीं पता. Let's call this WQ. Q के ऊपर और कौन सी force लग रही होगी? ऊपर की तरफ there will be tension.
These are the two forces that are acting on the particle Q. Okay? फिर आपके पास particle P है. P के ऊपर कौन सी forces लग रही होंगी? There is weight of P, that's WP. What other forces do we have? Anyone? और कौन सी forces हैं इसके अलावा? So friction. Friction, right? It's a rough surface. Friction कहाँ पे लगेगी? So towards the right. Towards the right. क्यों? Nice. क्योंकि लेफ्ट साइड पे आपकी एक फोर्स लग रही है विच इज टेंशन. स्ट्रिंग जो है, रिमेंबर टेंशन हमेशा जिस ऑब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से हम बात कर रहे हैं उससे अवे लगती है. तो पी के ऊपर जो टेंशन लग रही है वो कहाँ पे लग रही है? वो लेफ्ट साइड के ऊपर लग रही है. तो फ्रिक्शन क्या करेगी? उसको अपोज करेगी, उसको रोकने की कोशिश करेगी कि पी लेफ्ट पे ना मूव करे. So that's going to act towards the right side. Okay. Is there any other force acting on P? The normal reaction force, I think. Normal reaction as well, right? So normal reaction भी आपके पास इस तरह से vertically upwards लग रहा होगा. That's another force that we've got. ये forces लग रही हैं particle P के ऊपर. ठीक है, ये आपके पास forces हैं दोनों particles के ऊपर. अब उसने कहा क्या है? उसने कहा है the force exerted on the string by the pulley. अब एक पुली फोर्स लगा रही है स्ट्रिंग के ऊपर. इट हैज मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 न्यूटन. रिमेंबर व्हेन वी डिस्कस टेंशन, हमने कहा था जिस भी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे होते हैं टेंशन उससे अवे लगती है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट क्यू, क्यू से ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन. इफ यू टॉक अबाउट द पार्टिकल पी, पी से अवे वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे टेंशन लग रही होगी. अब अगर आप पुली के पर्सपेक्टिव से देखें, पुली के ऊपर भी तो कोई फोर्स लग रही है ना. पुली के ऊपर कोई फोर्स लग रही होगी. पुली के ऊपर स्ट्रिंग पे फोर्स लगा रही है. So tension. टेंशन, राइट. अब पुली के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो पुली के पर्सपेक्टिव से एक टेंशन लग रही है राइट साइड के ऊपर और एक टेंशन लग रही है नीचे की तरफ. पुली से अवे पुली को एक राइट साइड वाली स्ट्रिंग राइट पे खींच रही है, डाउनवर्ड स्ट्रिंग डाउनवर्ड खींच रही है. ये दो फोर्सेस लग रही हैं आपके ऊपर, आपके पुली के ऊपर. ठीक है. अब उसने कहा है द फोर्स exerted on the string by the pulley has magnitude 4 square root of 2 न्यूटन. तो बेसिकली होता क्या है, जब ये दोनों टेंशंस लग रही होंगी तो इनकी ओवरऑल रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पे इस तरह से लगेगा. दोनों टेंशंस का ये भी लग रही है, ये भी लग रही है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा? ये होगा पुली के ऊपर ये फोर्स लग रही है तो पुली एक रिएक्शन लगाएगी स्ट्रिंग के ऊपर जो इसके ऑपोजिट होगा. वो उसने बताया कि ये वैल्यू जो है ना, दिस इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. डज दैट मेक सेंस? जी सर. टेंशन लग रही है ना, टेंशन पुली के ऊपर लग रही है तो पुली तो मूव नहीं कर रही, पुली स्टेइंग इन इट्स पोजीशन. तो वो एक नॉर्मल एक रिएक्शन लगा रही है स्ट्रिंग के ऊपर, तो उससे ऑपोजिट जो रिजल्टेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. तो अगर ये 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो उससे हमें एसेंशियली उसने ये बता दिया है कि दोनों जो टेंशन है ना उनका रिजल्टेंट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. इसको यूज करके अब आप क्या कर सकते हो, आप टी की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हो. सो यू गॉट टू फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है. देयर इज वन फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दिस इज टी. देयर इज अनदर फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट्स आल्सो टी. इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है. इनका जो रिजल्टेंट है वो आपको लग रहा है इस तरह से. इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2. दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दोस टू टेंशंस. You can just make a simple force diagram. एक टेंशन ये है, उससे आगे हेड टू टेल रूल यूज करके the other tension is here. Resultant is 4 square root of 2. ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है. इन दोनों की वैल्यूज आपके पास यहां से आ जाएंगी. So this is T, this is T. Base square plus perpendicular square, T square plus T square, that should equal 4 square root of 2.
this gives you 2t square equals 4 square root of 2. T square equals, सॉरी इसको स्क्वायर नहीं किया हमने राइट साइड पे, 4 square root of 2 का होल स्क्वायर, दैट्स द हाइपोटेन्यूज. राइट साइड पे हमारे पास क्या आएगा, ये 16 times 2, that's 32. T square equals 16 and T equals 4 Newton from there. तो जो दोनों टेंशन्स लग रही थी पुली के ऊपर, उनका रिजल्टेंट वाज 4 square root of 2. तो आपने सिंपल पाइथागोरस यूज किया, उससे आपके पास T की वैल्यू आ गई व्हिच इज 4 न्यूटन. मेक सेंस? ये क्लियर है सबको, इसमें क्या मसला? No, clear. अब उसने कहा है स्टेट द मास ऑफ क्यू. क्यू का मास आपको बताना है. अब देखें क्यू के ऊपर, क्यू के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. अगर हम क्यू के पर्सपेक्टिव से देखें, देयर इज दिस टेंशन एंड देयर इज वेट. अब पी उसने कहा था रेस्ट पे है, जब पी रेस्ट पे है तो दोनों कनेक्टेड हैं, तो ऑफ कोर्स क्यू भी रेस्ट पे होएगा, है ना. तो क्यू के ऊपर जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं, अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड फोर्सेस, they have to be equal to each other because Q rest पे है, इसका मतलब है जो downward force है और जो upward force है, they should be equal to each other. So we can say tension equals WQ. टेंशन की वैल्यू तो हमारे पास पता है ऑलरेडी. अब that's 4, WQ equals 4 Newton. Weight ये आ गया. What about the mass now? W equals mass into gravity. 4 equals mass of Q into 10. mass की वैल्यू आपके पास आ गई 0.4 kilograms. तो आपको एक ये टेंशन फाइंड करनी थी. It was 4 Newton, and the other thing that you had to find was this mass of Q, which is 0.4 kilograms. ठीक है, इसमें क्या मसला? All right, so I'm assuming that's all right. Okay, good. Now let's look at the second part. Now the second part says, given that P is on the point of slipping. What does that mean? On the point of slipping, इसका क्या मतलब है? On the point of slipping क्या मतलब है? Limiting equilibrium, right? It's just about to move. It's just about to move. तो इसको हम कहते हैं limiting equilibrium. जब limiting equilibrium होता है तो क्या होता है? Friction equals mu into R. अब P का मास फिगर आउट करना है. आप P के ऊपर देख लें कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. P के ऊपर we've got some horizontal forces and some vertical forces. Opposite forces को इक्वेट कर दें. लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स के इक्वल, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल. जस्ट डू दैट. पार्ट 2. अब हम Q को कंसीडर करें, सॉरी P को कंसीडर करें. P के ऊपर क्योंकि इक्विलिब्रियम है, रेस्ट पे है, the force acting towards the left is equal to the force acting towards right, and the forces acting upwards are equal to the forces acting downwards. लेफ्ट वाले पे कौन सी फोर्स लग रही है? T. राइट साइड पे वी गॉट फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन हमें पता है क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू आर के इक्वल है. टेंशन हमें पता है, टेंशन इज एक्चुअली 4. यू कैन इनपुट दैट हियर. सो 4 इक्वल्स म्यू टाइम्स आर. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसने बताया क्या यहाँ पे हमें? कोएफिशिएंट फ्रिक्शन ने कहा था कोएफिशिएंट फ्रिक्शन है 0.8. उसने क्वेश्चन के अंदर बताया है दिस इज 0.8. ओके, तो यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं. दिस इज 4 इक्वल 0.8 इनटू r. यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है 4 over 0.8. व्हाट्स दैट? 5. राइट, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 5. r की वैल्यू आपके पास 5 आ गई.
upwards force को downward force के equal कर दें. Upwards you've got R, downwards you've got weight of P. So you say R equals weight of P. तो जो आपके पास R की वैल्यू है वही आपके पास उसके weight की वैल्यू आ जाएगी. And now mass of P therefore is 5/10, which is 0.5 kilograms. That's the mass of P. ठीक है? Any issues with this? Is that all right? इसमें क्या मसला? No, sir. No. All right, Chennai, let's look at the next part. Now it says a particle of mass 0.1 kilograms is now attached to Q and the system starts to move. Now let me just copy that diagram here again. Okay, so this is your diagram. अब part 3 में उसने क्या कहा है? A particle of mass 0.1 kilograms is now attached to Q. अब Q का mass पहले कितना था? हमने निकाला है Q का mass है 0.4. 0.4 में आपने 0.1 और ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया 0.5. तो Q के ऊपर जो अब टोटल वेट लग रहा है दैट इज 5 न्यूटन. 5 न्यूटन यहाँ पे नीचे फोर्स लग रही है. ये उसने कहा है कि ये हो गया यहाँ पे. एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा फोर्स, पहले तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, रेस्ट पे था. अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा पार्टिकल यहाँ पे अटैच कर दिया Q के ऊपर तो उसका वेट ज्यादा हो गया और वो नीचे मूव करने लग जाएगा. Q जो है वो नीचे मूव करने लग जाएगा. जब Q नीचे मूव करेगा तो P ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड पे मूव करने लग जाएगा, है ना? तो अब यहाँ पे देखें आपके पास P और Q पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. Q पे you've got 5 न्यूटन acting downwards और P पे it's the same set of forces जो आपके पास पहले थी. Nothing has changed. WP, weight of P कितना था? That was 5 Newton. There was reaction. There was friction acting towards right. And there was tension acting towards the left. और Q पे भी आपके पास upwards tension लग रही है. ये सारी forces लग रही हैं आपके दोनों particles के ऊपर. अब देखिए पहले तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में था. अब सिस्टम मूव करना शुरू हो गया. ओके, मूव किस साइड पे कर रहा है? उसने कहा नीचे को मूव कर रहा है. तो अब क्या होगा? Q पे आप देखें नीचे 5 न्यूटन फोर्स लग रही है, ऊपर टेंशन लग रही है, यानी कि नीचे वाली 5 न्यूटन फोर्स टेंशन से ज्यादा होगी तभी वो नीचे मूव करने लगेगा. इसी तरह यहाँ पे we've got T acting towards left, friction acting towards right. अब जो T लेफ्ट पे लग रहा है वो राइट साइड वाली फ्रिक्शन से ज्यादा होएगा तभी वो मूव करना शुरू करेगा. उसने क्या कहा है? उसने कहा है टेंशन की वैल्यू निकालें when the particles are in motion. T फाइंड करना है आपको. अब क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मूव करने लग गए हैं और आपको एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए अब टेंशन की, जब मूव करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं? वी यूज रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन. नाउ लेट्स लुक एट बोथ दोस पार्टिकल्स. P और Q दोनों को देखें. Q को अगर आप देखें, Q किस डायरेक्शन मूव कर रहा है? Q नीचे मूव कर रहा है, राइट? तो Q में रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करें. फॉरवर्ड फोर्स क्या है Q की? इट्स 5. बैकवर्ड फोर्स इज T. mass of this object now, वो 0.1 पहले वाला ऐड करने के बाद it's 0.5 into acceleration. ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई from Q. अब अगर आप P को देखें, रिमेंबर हमने उस दिन भी बात की थी
कि जब सरफेस पे होगा, सरफेस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस कोई मूवमेंट नहीं होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्सेस इक्वल होंगी। अलोंग द सरफेस आपकी मूवमेंट हो रही होगी, वहां पे आप आर एफ इक्वल्स एम अप्लाई कर रहे होगे। तो अगर आप परपेंडिकुलर फोर्सेस को देखें तो वहां पे अभी भी जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल हैं। सो द अपवर्ड फोर्स इज स्टिल इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, दैट इज 5 न्यूटन। बट along the surface your object is moving, उस पे आप क्या करें, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, या क्यू के ऊपर पी के ऊपर आप अलग से ये लगा देंगे। पी के लिए फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है, पी क्योंकि लेफ्ट में मूव कर रहा है, राइट, पी इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट नाउ, तो पी के लिए फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी, इट्स टी। बैकवर्ड फोर्स इज एफ, and this equals mass of p, which is 0.5 into acceleration. अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है, यानी कि ये क्या होगा, ये म्यू आर होगा। अब म्यू आर की वैल्यू में पहले से पता है, यहाँ पे ऊपर में निकाली हुई थी, रिएक्शन भी वही है, रिएक्शन भी चेंज नहीं हुआ, म्यू भी वही है, इसकी वैल्यू 4 है, या बेशक यहाँ पे डायरेक्टली डाल दें। we've got t minus 4 equal to 0.5 times a, ठीक है। दिस इज अनदर इक्वेशन दैट वी हैव। ये आप दोबारा से कैलकुलेट करना चाहते वो भी कर सकते थे, म्यू की वैल्यू 0.8 थी, हमें पता था रिएक्शन इज 5, तो वो 4 ही आता आपके पास, ठीक है। कभी कभी रिएक्शन चेंज हो जाता है तो फिर आपको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन वही था, इसलिए इट्स स्टिल t minus 4 equals 0.5 times a once you input this value of r here. ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये पहले थी, इन दोनों को यूज करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ t। 0.5 a आ रहा है, यहाँ भी 0.5 a आ रहा है, जस्ट इक्वेट बोथ ऑफ देम, you could say 5 minus t equals t minus 4, and this gives you 9 equals 2t and t equals 4.5 newton। ये आपकी टेंशन की वैल्यू आ गई व्हेन द पार्टिकल्स आर इन मोशन। अगर आपको एक्सेलरेशन भी चाहिए होती, आप वापस इसमें इनपुट करके एक ही वैल्यू भी फिगर आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उसने आपसे सिर्फ टेंशन पूछा था, या उसने सिर्फ टेंशन पूछी थी, आपने सिर्फ क्या किया, दोनों पार्टिकल्स के ऊपर आपने अलग अलग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। इज दिस ऑल राइट? जी सर। ठीक है, ये साथ साथ आप लोग खुद भी कर रहे होने चाहिए, अदरवाइज फिर खुद से नहीं होंगे। सो आइडियली यू शुड हैव अटेम्प्टेड दीस क्वेश्चंस फर्स्ट योरसेल्फ, तो फिर आपको पता होता कि इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपके, फिर हम उसको देख रहे होते हैं। बट ओके, ये हमने कर लिया, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन है तो बताएं। Can I have raise of hands for everyone? Can everyone raise a hand? Rafe, Rafe Abbas, can you hear me? Yes, sir. My mic was not working. I can hear you, sir. मैंने हैंड रेज करने के लिए कहा था सबको। Sir, वो बीच में आवाज नहीं आई थी. I was like doing that mute stuff. Okay, I'm marking attendance right now, Okay, sir. but I'll keep marking it again in the middle as well until we end the class. So we've got Okay, sir. just these 5 people here. I'll mark it right now. Okay, sir. A2, क्या आ गया इसका?
Okay, apparently it's broken right now. Okay, so maybe there's another version of this open. Just close all of them. ओके ना, इट्स नॉट वर्किंग। चलिए खैर, बाद में देखेंगे इसको। ऑलराइट, चलिए अब आप मुझे बताएं इफ यू ट्राइड एनी क्वेश्चंस और उनमें किसी में प्रॉब्लम आ रही हो, हम वो डिस्कस करेंगे। जी जी, बताएं आपके कोई क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किए और उनमें प्रॉब्लम आई कोई? नो। हमजा, आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए? यस सर, मैंने किए थे। देयर इज नो प्रॉब्लम, ये टॉपिक जरा आसान सा था। अच्छा, जो मैंने असाइन किए हुए थे वो कर लिए आपने सारे? तो सारे कर लिए मैंने, अपलोड कर दिए, एक रह गया, फिर मैं टर्न इन कर दूंगा। 2 और 26 पे कर लिया था? नहीं सर, वो रह गया मेरे। आपने जो पहली वाली लाइन की है वो की है, और उसमें से और जो नेक्स्ट लाइन है ना, उसके अंदर से आई थिंक 2-3 किए मैंने। ओके, चलें, let's try a few more questions then. Next, let's have a look at इसमें स्पीड आ रही है। Okay, 77. Let's try this. This is question number 77 from the worksheet. ये देखते हैं। All right. The tops of each of two smooth inclined planes A and B, they meet at a right angle. ये दो planes हैं, 1, 2, they meet at a right angle, तो ऊपर 90 degrees का angle बन रहा है यहाँ पे। The plane A is inclined at angle alpha to the horizontal, plane B is inclined at angle beta to the horizontal, where sine alpha is given. Sine alpha is 63/65 and sine beta is 16/65. Okay, ये दो चीजें दी हुई हैं। A small smooth pulley is fixed at the top of the planes and a light inextensible string passes over the pulley. So ये एक pulley है. There's a string passing. There's a string passing over the pulley. Two particles P and Q, each of mass 0.65 kilograms, are attached to the string. ये दोनों particles string पे attached हैं, P and Q. दोनों का same mass है 0.65 kilograms, तो weight कितना होगा? 6.5 Newton. So this has a weight of 6.5 Newton. And particle P also has a weight of 6.5 Newton. दोनों का same weight है. ठीक है. Particle Q is held at rest at a point of the same line of greater slope of the plane B as the pulley. So particle P आपको यहाँ पे नजर आ रहा है. It's held at rest. That's important.
ये अभी जो है it's held at rest. Q is held at rest. In fact, it's here. Particle P rests freely below the pulley in contact with plane है, ये भी आपका नजर आ रहा है यहाँ पे. Particle Q is released and the particles start to move with the string taut. अब Q को पहले आपने यहाँ पे होल्ड किया हुआ था. When you release it, the particles are going to start to move with the string taut. Fine, we have to find the tension in the string. Tension figure out करनी है. ठीक है. Now, how do we think about this? You've got particle P here, you've got particle Q. इन दोनों के ऊपर पहले देख लें कौन कौन सी forces act कर रही हैं. If you look at particle P के ऊपर एक तो weight है P का, that's 6.5 Newton. और कौन सी forces होंगी P के ऊपर? P के ऊपर और कौन सी forces हैं? Anyone? टेंशन, Tension, right? normal Tension P से away यहाँ पे tension लग रही होगी. This is tension. And normal reaction, that's going to act perpendicular to the surface. This is reaction. Any other forces? सर वेट तो हो गया सर. वेट को Friction? रिजॉल्व, Friction? फ्रिक्शन भी है Friction होगी कि नहीं होगी? सर. नहीं, स्मूथ है. उसने कहा है the two planes are smooth. दोनों smooth planes हैं, तो यहाँ पे friction नहीं होगी. Okay, तो P के ऊपर ये forces लग रही हैं. अब Q का weight कितना है? 6.5 Newton. What about the reaction? ये reaction होएगा इस direction के अंदर. This was RP, this is RQ. These are different, of course. And there's going to be tension. ये आपकी tension आ गई. Tension तो of course equal होगी, हमें पता है. पुली के दोनों sides के ऊपर tension equal होती है. ये आपके पास tension आ गई. ठीक है, ये सारी forces हैं. Now we first need to resolve the forces that are not acting parallel or perpendicular to the surface. जो भी forces parallel या perpendicular नहीं है उनको आपको resolve करना पड़ेगा. So पहले 6.5, इन दोनों 6.5 को resolve करना पड़ेगा. Now how do we resolve them? Now we've discussed this before. If this angle is beta, we know that this angle here is also going to be beta. ठीक है, तो ये जो weight के components होंगे वो क्या होंगे? एक जो बीटा के साथ वाला कंपोनेंट है that is 6.5 cos beta, and the component on the other side of the angle is going to have sine, so that is 6.5 sine of beta. ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वेट है इसको रिजॉल्व कर लें. इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे? If this angle is alpha, we know जो ये वाला एंगल बनेगा यहाँ पे, not showing very clearly, you can see represented on the side here, but ये आपका वेट है 6.5 न्यूटन. तो ये जो परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे, ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये अल्फा होएगा. इस साइड वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी 6.5 cos alpha, and this one is going to be 6.5 sin alpha. ठीक है, ये आपने इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लिया, वेट्स को रिजॉल्व कर लिया. ये क्लियर है? ये प्रोसेस क्लियर है सबको? Online class में it really helps if you guys respond regularly and quickly. Otherwise, how would I know if you understand or not? Are you guys there? Are you guys there? इसमें क्या प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? No, sir. Yes, sir. Okay, all right. अब क्या करें? हमें टेंशन निकालनी है. उसने क्या, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. पार्टिकल्स आर मूविंग.
अब किस साइड पे मूव करेंगे, इट्स वेरी क्लियर। यहाँ पे देखें, ये स्लोप दोनों का सेम वेट है ना, ये स्लोप ज्यादा है, ये स्लोप कम है, ये स्लोप ज्यादा है, तो जो ज्यादा स्टीप साइड है उस साइड पे मूव कर रहे होंगे, तो पी नीचे की तरफ जा रहा होगा, पी नीचे की तरफ जाएगा और क्यू जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। तो अब कौन सी फोर्सेस लग रही हैं दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, लेट्स थिंक अबाउट both of them one by one. So we've got particle P and we've got particle Q. Perpendicular forces तो इक्वल होंगी, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दे आर इक्वल टू ईच अदर। सिमिलरली दिस फोर्स एंड दिस फोर्स दे आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन रिएक्शन की हमें यहाँ पे ऐसा जरूरत नहीं है, रिएक्शन हमें तब चाहिए होता है इस तरह की कैलकुलेशंस में जब फ्रिक्शन आ रही हो, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू पे म्यू आर होती है, म्यू आर के अंदर हमें आर की वैल्यू डालनी होती है। जब फ्रिक्शन नहीं है तो वी डोंट रियली नीड दीज रिएक्शंस एज सच। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ ये पैरेलल फोर्सेस देख लेते हैं, ये फोर्स है, के फोर्स है, क्यू लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा होगा और पी जो है नीचे की तरफ इस तरह से आ रहा होगा। तो पी की फॉरवर्ड फोर्स क्या हुई, दोनों के ऊपर अगर हम रिजल्टेंट फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई करें, पी के ऊपर क्या होगा, फॉरवर्ड फोर्स है 6.5 साइन अल्फा, backward force is t, so resultant force is 6.5 sin alpha minus t equals mass of p which is 0.65 into acceleration। q को देखें, q पे फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है, लेफ्ट साइड पे t लग रहा है, राइट साइड पे you've got 6.5 sin beta, वो बैकवर्ड फोर्स है, t is the forward force because q लेफ्ट पे मूव कर रहा होगा, q राइट पे q लेफ्ट में मूव कर रहा है, तो t is the forward force, 6.5 sin beta is the backward force, resultant force ये आ गई equals mass of q which is 0.65 into acceleration। यहां से हमें क्या करना है, टेंशन निकालनी है। ओके, एक्सेलरेशन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ उसने टेंशन निकालने के लिए कहा है। तो क्या करें, साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यूज गिवन है, हमें पता है साइन अल्फा ये है, साइन बीटा ये है, इनको डाल दें इसके अंदर। What does that give us? That gives us 6.5 sine alpha, which is 63 over 65 minus t equals 0.65 into a, and this first equation is 6.3 minus t equals 0.65 times a. Let's look at the other equation. It's t minus 6.5 into sine of beta. Sine of beta is given to be 16 over 65. That equals 0.65 into acceleration. इसको simplify करेंगे, we'll get t minus 1.6 equals 0.65a. अब दोनों पे यहाँ भी 0.65a आ रहा है, यहाँ पे 0.65a आ रहा है, दोनों को इक्वेट कर दें, and that gives you 6.3 minus t equals t minus 1.6. 1.6 इधर आके ऐड हो जाएगा, we get 7.9 equals 2 times t divided by 2. That should give you 3.95 Newton. This is the value of t that we were looking for. अगर आपको acceleration भी चाहिए होती, ये जाके यहाँ पे input कर देते, आपके पास acceleration की value भी आ जाती, लेकिन यहाँ पे उसने सिर्फ tension पूछा है, so this is our final result, 3.95 Newton. Make sense? ये clear है सबको? Yes, sir. All right. This was question number 77. Let's look at another one. इसके बाद we'll have a break. Ali, how was your SAT? अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम।
सर वो इंग्लिश का सेक्शन मैंने बस इम्प्रूव करना था एंड आई थिंक आई नेल्ड दैट प्रीटी मच। बाकी मैथ्स में बस मेरा एक एक दो सवाल का डिस्क्रिपेंसी रह गया था, बाकी मैंने डिस्कस नहीं किया, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। Okay, that's good to hear. Mashallah. I wish जी you all सर, the best, inshallah. थैंक यू सर। Great. सर ये अभी वाला जो आपने सवाल कराया, ये मैं अभी ज्वाइन किया तो मैंने वो देख पूरा पूरा नहीं देखा, आई जस्ट सॉ द वर्किंग। Mm-hmm. तो वो कैन आई जस्ट लुक एट द नोट्स फिर, या इफ यू कैन एक्सप्लेन इट अगेन? I'll share the recording right after the class ends. Okay. चलें, Just सही है। मैं foreign बाद recording share कर देता हूँ. ओके सर, You can सही have a है, look at that. Okay. सही है सर, थैंक यू। अच्छा, let's look at this. This is question number 14. ये देखते हैं. ये देखते हैं, उसके बाद we'll have a break. Okay. Okay, take a minute and read this question, and then we'll do this. All right, let's try this. So we have a rough inclined plane of length 65 centimeters. It's fixed with one end at a height of 60 meters above the other end. तो आपको नजर आ रहा है, it's a rough plane. Rough है तो इसका मतलब है there's going to be friction. Length दी हुई है 65 centimeters और height दी हुई है 16 centimeters. ये length देने का purpose is basically to find the angle. अगर आपको ये angle of inclination चाहिए plane का, this angle, you can find that using these two things. इसको theta कहें, आप theta की value निकाल सकते हैं tan use sin use करके. Particles P and Q of masses 0.13 kilograms and 0.11 kilograms are attached to the ends of a light inextensible string. You can see that there, which passes over a smooth pulley at the top of the plane. ये pulley से pass, pulley के ऊपर से pass करिए. ये दो particles हैं आपके पास. इनके masses हैं, तो इनके weights क्या हो जाएंगे? P का weight कितना हो जाएगा? This is going to be 1.3 Newton, and the weight of Q is 1.1 Newton. ठीक है. Particle P is held at rest on the plane, and particle Q hangs vertically below the pulley. Okay, so P is held at rest. इसको यहाँ पे आपने hold किया हुआ rest पे. The system is released from rest then, and P starts to move up the plane. So when the system is released, P is moving in this direction. अगर P इस direction में move कर रहा है, तो Q कहाँ move करेगा? Q is going to move downwards. P इधर जाएगा और Q नीचे को जा रहा होगा. In the first part, it says, draw a diagram showing the forces acting on P during its motion up the plane. Okay. Diagram के ऊपर बस आपने क्या करना है, ये forces represent कर देनी है, बेशक आप उसी diagram के ऊपर कर दें. यहाँ पे आप अलग से बना लें, P के ऊपर कौन कौन सी forces लग रही हैं. We've got the plane like this. This is the particle P. एक इसका weight है. Weight is acting vertically downwards. This is 1.3 Newton. ठीक है. और कौन सी force होएगी? There's normal reaction. That's perpendicular to surface. P क्योंकि ऊपर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ पे होगी?
backwards in this direction, और ये आपकी स्ट्रिंग कनेक्टेड है, उसकी वो टेंशन अप्लाई कर रही होगी जो इस डायरेक्शन में लग रही होगी. These are the forces acting on the particle P. Is that okay? ठीक है, ये forces है ना. Now let's represent these forces on that diagram as well. एक आपके पास ये रिएक्शन है, we've got tension acting on the right side, we've got friction acting to the left, on the left side. चलिए नीचे वाली स्ट्रिंग है, I'm sorry, यहाँ पे टेंशन लग रही है और इधर को we've got friction. ये forces लग रही हैं particle P के ऊपर. What about Q? Q के ऊपर एक force नीचे लग रही है 1.1 Newton. There's only one other force, that is tension, that is acting upwards. ये T के ऊपर forces लग रही हैं. Now, in the first part, it says, show that T minus F is greater than 0.32. So उसने F से क्या denote किया है? अच्छा, उसने बाद में बताया. T is the tension and F is the magnitude of the frictional force acting on B. Friction को उसने capital F से denote किया. तो हम ऊपर capital F से denote कर देते हैं यहाँ पे भी. So friction को उसने कहा, this is capital F. Okay. Now we have to show that T minus F is greater than 0.32. How do we do this? Any idea? ये कैसे शो कर सकते हैं? That T minus F is greater than 0.32. फिर T minus F resultant force नहीं होगी? T minus F resultant force होगी. तो ये 0.32 कहाँ से आ रहा है? अगर पहले तो होगी आपको तो वो उसको like MA के इक्वेट कर दें. नहीं, लेकिन ये तो इनइक्वालिटी आ रही है ना. इक्वेशन से तो आपकी कोई स्पेसिफिक वैल्यूज आती है. इनइक्वालिटी कहाँ से आ गई? देखें, आपके फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक तो T लग रहा है, दैट्स द फॉरवर्ड फोर्स. द बैकवर्ड फोर्स इज फ्रिक्शन. वेट आपका ये नीचे पे लग रहा है, which is 1.3 न्यूटन. अब वेट का एक कंपोनेंट कहाँ पे लगेगा? if this angle is theta, there is one component here. ये एंगल भी थीटा आएगा, तो एक कंपोनेंट यहाँ पे होगा 1.3 cos थीटा, और दूसरा क्या हो जाएगा इसके दूसरे साइड के ऊपर? दिस कंपोनेंट, दिस इज 1.3 sin थीटा. दूसरा कंपोनेंट आपका इस तरह से लग रहा होगा, दिस इज 1.3 sin थीटा. तो बैकवर्ड फोर्सेस एक्चुअली दो हैं. इट्स नॉट जस्ट वन, देयर आर टू बैकवर्ड फोर्सेस. T is the forward force. Backward forces are F and 1.3 sin theta. अब क्योंकि पार्टिकल P राइट साइड पे मूव कर रहा है, अब राइट पे क्यों मूव करेगा? बिकॉज जो राइट वाली फोर्स होगी वो ज्यादा होगी लेफ्ट वाली फोर्स के. जो फॉरवर्ड फोर्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन द बैकवर्ड फोर्स. ओनली देन द ऑब्जेक्ट कैन मूव, राइट? क्योंकि इनइक्वालिटी है यहाँ पे. अस्सलाम वालेकुम सर. थिंक ऑफ इट लाइक, वालेकुम अस्सलाम. क्योंकि यहाँ पे सर सॉरी, इनइक्वालिटी है. मेरा क्लैश था क्लास के साथ, इसलिए मैंने लेट ज्वाइन किया. अच्छा, यहाँ दरम्यान में नहीं करते ना. वी आर डिस्कसिंग अ क्वेश्चन. It's all right. So it's okay. Let's do this. Okay. Forward force क्या लग रही है? T. Backward force क्या लग रही है? Friction and 1.3 sin theta. Forward force सिर्फ एक है, backward forces दो हैं. तो forward force backward forces से ज्यादा होनी चाहिए, फिर ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. So that's what we do here. क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा होनी चाहिए. फॉरवर्ड फोर्स कौन सी है? T.
that should be greater than the backward forces, which is F and 1.3 sin theta. ठीक है? Now what's sin theta? उसने ये लेंथ दी हुई है 16 है, ये 65 है, तो अगर आप ये उस ट्राइंगल के ऊपर, जो बड़ी ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर अगर आप साइन लगा दें, ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास 16 and 65. साइन थीटा क्या हो जाएगा 16/65. ये आप वैल्यू जाके यहाँ पे इनपुट कर दें 1.3 into 16/65. What do we get from this? ये क्या आता है 1.3 into 16/65. That's 0.32. उसने इनइक्वालिटी का प्रूफ करने के लिए कहा था t minus f is greater than 0.32. बस आप f को राइट साइड पे ले, f को लेफ्ट साइड पे ले जाएं, and you get that inequality t minus f is greater than 0.32. ठीक है? अब जब आप ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसकी फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स से ज्यादा होगी, तभी वो मूव कर रहा होगा। तो सबने वो इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज कर ली। इज दैट ओके? Is that okay to everyone? Can I have raise of hands for everyone again? Yes. Okay, good. So that was the second part. Let's look at the third part now. Now it says the coefficient of friction between P and the plane is 0.6. अब उसने coefficient of friction की वैल्यू दे दी आपको. That is 0.6. ठीक है? Now, using this information, we need to find the acceleration of P. And it's a 6-point question. Acceleration find करनी है। अब देखिए forces दी हुई हैं, acceleration find करनी है। कौन सी चीज़ है तो forces और acceleration को connect करती है? Its resultant force equals mass into acceleration. वही आपको apply करना होगा, but how exactly? Let's think about that now. Coefficient of friction उसने बता दिया। अब देखें दो particles हैं, एक particle P है, एक particle Q है। दोनों के ऊपर आप क्या करें, क्योंकि P राइट पे मूव कर रहा है, Q नीचे मूव कर रहा है, दोनों के ऊपर अलग अलग रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन अप्लाई कर देते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट। पार्ट 3, एक आपके पास है पार्टिकल P और दूसरा आपके पास है पार्टिकल Q। अब P के ऊपर देखें, देयर आर सम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अलोंग द सरफेस। अलोंग द सरफेस क्या होता है, आप RF इक्वल्स MA लगा देते हो जब आपको स्पेसिफिक वैल्यूज फाइंड करनी होती है। सो अलोंग द सरफेस आप क्या करोगे, you'll say resultant force equals mass into acceleration perpendicular to surface। तो आपकी upwards और downward forces तो equal ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि perpendicular movement नहीं हो रही होती है। Upwards is R, downwards is 1.3 cos theta. So you've got R equals 1.3 cos theta. Resultant force right side पे T लग रहा है, left side पे ये दोनों forces लग रही हैं। So we've got T minus F minus 1.3 sin theta. That's the resultant force. What's the mass of P? Mass of P is 0.13.
and we multiply that by acceleration. Okay, ये आपके पास एक इक्वेशन यहां से आ गई। अब r की वैल्यू 1.3 cos थीटा थी। फ्रिक्शन क्या है? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, जब पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर होती है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वी कैन से F is mu into R, what 1.3 sin theta, 1.3 sin theta हमने यहाँ पे evaluate किया था ऊपर, 1.3 into 16 over 65. On the other side we've got 0.13 into A. अब हमें म्यू की वैल्यू भी पता है, उसने बता दी है, म्यू इज 0.6। R हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया, दैट्स 1.3 cos थीटा। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 1.3 cos थीटा क्या होएगा? वन पॉसिबिलिटी इज कि आप यहाँ से साइन थीटा को यूज करके थीटा निकालें, फिर उसका कॉस निकाल लें। यू कैन डू दैट इफ यू वांट, या फिर आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हैं, पाइथागोरस लगाएं। साइन थीटा है ना, ये साइन थीटा का मतलब है दिस इज परपेंडिकुलर ओवर द हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर 16 है और हाइपोटेन्यूज 65 है, तो बेस कितनी होगी? बेस स्क्वायर इक्वल 65 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी? 65 squared minus 16 squared, इसका square root, we get 63. तो आप cos theta directly लिख सकते हो। You can say cos theta therefore is base over hypotenuse, which is 63 over 65. इससे आपको exact value मिल जाएगी, उससे 63 over 65. You can just input that here, 63 over 65. यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी 1.3 into 63 over 65. This is giving me 1.26. R is 1.26. अब यहाँ पे आप म्यू भी डाल दें, उसने कहा था 0.6 है म्यू, R is 1.26. Then this thing evaluates to 1.3 into 16 divided by 65, which is 0.32, equals 0.13 into acceleration. ठीक है, अब इससे क्या होगा? आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 0.6 into 1.26 plus 0.32. We've got t minus 1.076 equals 0.13a. This is one equation that we've got in terms of t and a. We've got another particle here, that's particle q. q के ऊपर भी आप इसी तरह से कर लें। q तो हवा में, तो इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं, एक t लग रही है, एक 1.1 लग रही है। अब इसके ऊपर भी RF equals ma अप्लाई कर दें। What's the resultant force here? Q नीचे को मूव कर रहा है, 1.1 is the forward force. 1.1 is the forward force, backward force is T. So we say 1.1 minus T equals mass of Q. Mass of Q कितना था? 0.11 into acceleration. This is another equation that we've got. इन दोनों equations को use करके आप के पास t भी आ जाएगा और a भी आ जाएगा। उसने एक्सेलरेशन मांगी है सर, तो आप t को एलिमिनेट कर दो, t को सब्जेक्ट बना लो यहाँ पे। दैट गिव्स यू 0.13a plus 1.076 and the other one gives us 1.1 minus 0.11 into a. ठीक है, equate both of them, get 0.13a 1.076 equals 1.1 minus 0.11a. यहाँ से आपके पास a आ जाएगा, you get 0.24 into a. जब ये 1.076 दूसरी साइड पे जाएगा, that is going to give us 0.024 on the other side. a की वैल्यू जो यहाँ पर आ जाती है
वो आ जाती है 0.1 meters per second square. This is the acceleration that we were looking for. Is that okay? Specific questions? Is this all right to everyone? Specific questions? Any problems? Okay, let's have a short break. We resume at 3:20. We'll do a couple of more questions. इसमें एक question काफी tricky है. ये question number 2 for instance. एक 2 है और इसी तरह का एक और question है 26. ये दोनों मैंने आपको assign किए हुए थे. Very similar. We will discuss one of these as well and another question apart from these. ठीक है, 2 questions करते हैं. After the breaks, we'll resume at 3:20 inshallah. In the meantime, if you have any questions on this, you can let me know. I'm here in the break as well.
All right, guys, we're resuming. Those of you who are here, can you raise your hand? So I know you're back. Okay, good. So I think we can resume then. Okay, हमने 14 देखा था अभी. Let's see another one. Okay, this is a slightly confusing one. So लोग कुछ confuse होते हैं. Let's do this 32 and then we'll do one of those 2 and 26. ठीक है? ये try करते हैं. This is question number 32 from the worksheet. All right, let's try this. A small block of mass 1.25 kilograms is on a horizontal surface. 3 horizontal forces with magnitudes and directions as shown in the diagram are applied to the block. So its mass कितना है? 1.25 kilograms. It's on a horizontal surface. And 3 horizontal forces with magnitudes and directions as shown in the diagram are applied to the block. The angle theta is such that cos theta is 0.28. You've got this angle theta here. उसने cos बताया हुआ है इसका और sin भी बताया हुआ है. A horizontal frictional force also acts on the block and the block is in equilibrium. अच्छा देखिए 3 forces उसने बताई हैं. 1, 2, 3. उसने कहा there's another force that is the frictional force that is also acting here. In the first part it says show that the magnitude of the frictional force is 7.5 Newton and state the direction of this force. फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड आपने शो करना है 7.5 न्यूटन है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है. ठीक है. अच्छा, अब इसमें सबसे पहली जो कंफ्यूजन आती है ना, ये 1.25 किलोग्राम ये मास है, तो क्या इसके वेट को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये वेट लग रहा है 12.5 न्यूटन? कैन वी डू दैट? विल दिस मेक सेंस? 12.5 जी कर सकते हैं. Anybody who does not agree to it? Sir, I had a problem understanding it. Can you repeat that? I'm just asking, can you represent weight like this? 12.5 न्यूटन जो वेट है आपका, वो इस डायग्राम के ऊपर हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? So that's a question that I'm asking. वेट इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं? सर कर सकते हैं. कर सकते हैं. अच्छा देखिए, उसने ना एक वर्ड यहाँ पे यूज किया है इतनी दफा. That's just to make this point very clear. This is a horizontal surface and these are horizontal forces. तो बेसिकली इट्स समथिंग लाइक दिस कि आपके पास एक सरफेस है इस तरह से. प्लेन नहीं होगा. वो प्लेन में, इस प्लेन में नहीं होगा. सो दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड लेट्स से दिस इज अ पार्टिकल. ये सरफेस जो है ना, ये हॉरिजॉन्टल है. वेट लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस. वेट इसके बाहर लग रहा है सरफेस के. राइट. सो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. जो फोर्सेस है सारी ना, वो इस प्लेन की जो बाकी सारी फोर्सेस उसने बताई हुई हैं 4.8 न्यूटन, 6.1 न्यूटन, 5 न्यूटन, वो सारी इस प्लेन के अंदर लग रही हैं. जो येलो पार्ट है उस प्लेन के अंदर है. हॉरिजॉन्टल पार्ट, हॉरिजॉन्टल सरफेस के अंदर है.
वेट हमेशा लगता है परपेंडिकुलर टू सरफेस, राइट? तो वेट जो है इस डायग्राम पे नहीं आ सकता बिकॉज दैट्स इन अनदर डायरेक्शन, इन अनदर डायमेंशन। तो वेट आपका इस तरह से बाहर लग रहा है, दैट इज 12.5 न्यूटन। वो इस डायग्राम पे यानी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के साथ नहीं आएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये ठीक है? यस सर। ओके, अच्छा लेट्स हैव अ 1 मिनट ब्रेक। अजान हो रही है यहाँ पे, 1 मिनट बाद रिज्यूम करते हैं। ओके चले, तो ये फोर्सेस सारी क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस में एक्ट कर रही है, ठीक है? वेट इज आउट ऑफ द सरफेस, वो वर्टिकल लग रहा है, तो वो इस इन बाकी फोर्सेस के साथ हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ठीक है? यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं फिर इस प्लेन के अंदर? एक तो ये फोर्सेस है जो यहाँ पे लग रही है, उस इनके अलावा the only other force is this frictional force, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है ना, ये भी उस सरफेस के अंदर है। फ्रिक्शन फोर्स कहीं पे और लग गई है, वो हमें नहीं पता उसकी डायरेक्शन क्या है, वो हमें फिगर आउट करनी है। उसने उस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछा। अब उसने कहा ब्लॉक इक्विलिब्रियम के अंदर है, ब्लॉक इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि जो सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा दैट इज सपोज टू बी 0, ठीक है? अब फ्रिक्शन हमें नहीं पता कहाँ पे लग रही है। ओवरऑल अब देखें इन फोर्सेस को, ये फोर्स लग रही है, ये लग रही है, ये लग रही है। इनको देख के लगता है कि ओवरऑल ये तीनों फोर्सेस का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे कहीं लेफ्ट साइड पे होना चाहिए, उसका यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, लेफ्ट साइड पे कहीं पे इनका रिजल्टेड होना चाहिए। तो फ्रिक्शन क्या कर रही होगी? उनको अपोज कर रही होगी, इस डायरेक्शन में कहीं पे लग रही होगी। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। तो वो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे? हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इनका रिजल्टेंट जहां भी आएगा, इसका मतलब है पार्टिकल वहां पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्या करेगी? उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ऑलराइट, सो व्हाट वी डू इज वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। ये और ये इनके रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है? अब ये 4.8 है, ये 6.1 है, ये तो अपवर्ड्स लग रही है, लेफ्ट पे लग रही है उस प्लेन के अंदर। जो थर्ड फोर्स है ये एंगल के ऊपर है, तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। इसका एक कंपोनेंट यहाँ पर होएगा, दूसरा इधर होगा। दिस वन इज 5 cos थीटा एंड दिस वन इज 5 sin थीटा। तो हम पहले इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट वाली फोर्सेस ये हैं, अपवर्ड फोर्सेस, अपवर्ड फोर्स जो है वो एक हमारे पास ये आ रही है, डाउनवर्ड ये आ रही है। इनसे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजल्टेंट्स निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट? रिमेंबर जब हम रिजल्टेंट निकालते थे हम क्या कहते थे? हम इस तरह से कर रहे होंगे, ये प्लस साइड है, ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड और ये माइनस साइड है।
है ना? तो हम ये कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट, राइट साइड पे कोई फोर्स लग रही है? कोई भी नहीं है इन तीनों में, तो दैट्स 0। लेफ्ट साइड पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? we've got 5 cos theta and also 6.1। ये हमारे पास लेफ्ट साइड वाले फोर्सेस हो गए। अब cos थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये क्या हो जाएगा, -5 इंटू cos थीटा 0.28, ये गिवन है ऊपर स्टेटमेंट में, -6.1, दैट गिव्स अस Rx। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस टर्न आउट टू बी? लेट्स इवैल्यूएट दिस। 5 into 0.28 and 6.1। Okay, I'm getting 7.5 for this। ये आपके पास आता है -7.5 न्यूटन। इसी तरह से वर्टिकली मतलब अप और डाउन फोर्सेस देख लें, ये और ये, इनमें आप देख लें क्या बन रहा है। ऊपर वाली फोर्स 4.8 है, 4.8 में से आपने माइनस किया 5 sin थीटा। लेट्स सी व्हाट दैट गिव्स अस। दिस इज 4.8 minus 5 into sin theta, that's 0.96, and this turns out to be 0। तो हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट इनका क्या है? -7.5। वर्टिकल रिजल्टेंट तो कुछ भी नहीं है, दैट्स जस्ट 0। तो ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। 4.8 4.8 लेफ्ट साइड पे रिजल्टेंट लग रहा है सर। तो रिजल्टेंट जो है वो क्या है? रिजल्टेंट ऑफ दोज थ्री फोर्सेस, that is this force acting towards the left side of 7.5 न्यूटन। अब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, पार्टिकल इक्विलिब्रियम में इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए। तो जो लेफ्ट साइड पे फोर्सेस लग रही हैं, फ्रिक्शन इनको बैलेंस करेगी। तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगी? फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट टुवर्ड्स द राइट, और उसकी वैल्यू भी कितनी होगी फिर? 7.5 न्यूटन, ताकि ये आपकी फोर्स बैलेंस हो जाए, रिजल्टेंट फोर्स उन तीनों फोर्सेस की। So what do we say then? We say friction is equal to 7.5 न्यूटन, और उसकी वैल्यू कितनी है? This is acting towards the right side। Does this make sense? तो जो तीनों फोर्सेस गिवन थी उनका रिजल्टेंट निकाल लिया, क्योंकि उसने कहा था इक्विलिब्रियम है। तो इसका मतलब है कि रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, यानी जो रिजल्टेंट आ रहा है उसके उतने ही ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फ्रिक्शन लग रही होगी, सेम मैग्नीट्यूड की। इज दैट ओके? ठीक है ये? एनी प्रॉब्लम्स? रिस्पॉन्ड कर दिया करें। एनी प्रॉब्लम्स? क्लियर है सबको? नो सर, आवाज आ रही है। ओके, चले। सो दैट वाज द फर्स्ट। सेकंड पार्ट में वो कहते हैं, गिवन दैट द ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। म्यू फाइंड करना है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? F इक्वल्स म्यू इनटू आर। फ्रिक्शन की वैल्यू है हमारे पास, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो F इक्वल्स म्यू आर तो कर दिया। फ्रिक्शन उसने कहा है 7.5 है। आपने फाइंड क्या करना है? म्यू फाइंड करना है, राइट? अब हमें पता है, हमने ऊपर भी देखा था, सारी फोर्सेस तो इस प्लेन में लग रही हैं, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसी के अंदर आपकी सारी फोर्सेस लग रही हैं। सो लेट्स से दैट पॉइंट इज हियर। वेट जो है वो कहाँ लग रहा है? वेट वर्टिकली लग रहा है इस सरफेस के, दैट वुड बी
हाउ मच 7 वेट हमने कितना दिया हुआ था उसने 1.25 किलोग्राम मास था, तो वेट कितना हो जाएगा 12.5 न्यूटन। वर्टिकल और तो कोई भी फोर्स नहीं है, रिएक्शन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी पर जो उसके परपेंडिकुलर लगेगा यहाँ पे, रिएक्शन की वैल्यू भी उसके इक्वल हो जाएगी, दैट वुड आल्सो बी 12.5 न्यूटन, बिकॉज वर्टिकल फोर्सेस और कोई भी नहीं है, तो वेट और रिएक्शन की वैल्यूज यहाँ पे इक्वल हो जाएंगी फॉर दैट रीजन। ठीक है, तो रिएक्शन भी वही है 12.5, इसको आप 12.5 डाल देंगे, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू टर्न्स आउट टू बी 7.5 over 12.5 and that is 0.6। ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया। ठीक है, so that was the second part. Now the third part says the force of magnitude 6.1 Newton is now replaced by a force of magnitude 8.6 Newton acting in the same direction and the block begins to move. All right. अब यही सिचुएशन है जो आपके पास पहले थी इधर, I'm just going to copy that. ये सारी फोर्सेस आपके पास लग रही थी। अब उसने थर्ड पार्ट में कहा है कि जो 6.5 न्यूटन 6.1 न्यूटन वाली जो फोर्स लग रही है ना लेफ्ट साइड के ऊपर, वो आपने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 8.6 न्यूटन वाली फोर्स के साथ, और ब्लॉक अब मूव करना शुरू हो गया। अब देखिए फोर्सेस कौन कौन सी लग रही थी, हमने फ्रिक्शन फाइंड कर लिया, तो फ्रिक्शन राइट पे लग रही थी ऊपर, फ्रिक्शन वाज 7.5 न्यूटन हियर, और ब्लॉक पहले इक्विलिब्रियम के अंदर था, है ना। अब अगर आप इस 6.1 की बजाय कहो कि यहाँ पे 8.6 फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड के ऊपर, यही कहा है ना उसने, 6.1 वाली फोर्स को रिप्लेस करके 8.6 न्यूटन कर दिया है। अब इस सिचुएशन में वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो अब रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी, ये वाली फोर्सेस तो रिमेंबर इक्वल है, हमने फाइंड किया हुआ है 4.8 ऊपर को फोर्स लग रही थी, नीचे 5 साइन थीटा, ये भी 4.8 वैल्यू आ रही थी, 5 cos थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 5 cos थीटा वाज दिस थिंग, 5 into 0.28, let's just evaluate that again quickly, that was 1.4 न्यूटन, ये वैल्यू 1.4 न्यूटन आ रही थी। तो क्या रिजल्टेंट फोर्स होगी आपकी, 1.4 8.6, इन दोनों को ऐड किया, 7.5 न्यूटन माइनस कर दिया, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जब लेफ्ट साइड पे 6.1 न्यूटन लग रही थी ना, उसको आपने रिप्लेस किया 8.6 से, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज लेफ्ट साइड वाली फोर्स आपने बढ़ा दी है। तो फॉरवर्ड फोर्स क्या है जो लेफ्ट पे लग रही है, लेफ्ट पे you've got 8.6 and you've got 1.4, subtract from that the backward force which is 7.5 equals mass which is 1.25 into acceleration। लेफ्ट साइड पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स आ गई 2.5, 2.5 ही चेंज हुआ था ना, 6.1 को आपने 8.6 कर दिया था, रिजल्टेंट फोर्स आपके पास 2.5 बेसिकली आ गई उस वजह से। राइट साइड पे गॉट 1.25 है, यहाँ से आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी विच इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबका। Yeah, that was the third part here. ये हमने कर लिया। Okay, let's do one last question and that's a bit tricky. Let's go back here. Yeah, let's do this. Question number 26. इस तरह एक और क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2, that's exactly the same, almost exactly the same, बस कॉन्सेप्ट वही है, बाकी सब चीजें तकरीबन वही हैं। Let's try this. This is question number 26 from the worksheet.
Okay, let's do this last question for today, then we end. फिर आप और क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करें, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप खुद से भी करें इसको. It's really important, but this is one relatively more difficult one. Let's try this. Okay, two rectangular boxes A and B are of identical size. The boxes are at rest on a rough horizontal floor with A on top of B. All right, we've got two boxes and B. They're identical size. They are both at rest. Rough horizontal floor है. A ऊपर है, B नीचे. नजर आ रहा है आपको वहां पे. Box A has mass 200 kilograms and box B has mass 250 kilograms. A horizontal force of magnitude P Newton is applied to B. ये force लग रही है P Newton. The boxes remain at rest if P is less than or equal to 3150, and they start to move if P is greater than 3150. Find the coefficient of friction between B and the floor. ये उसने फाइंड करने के लिए कहा. ओके, अब देखिए उसने क्या कहा है. ये फोर्स P लग रही है. इस तरह की फोर्स में अक्सर आई प्रेफर रिप्रेजेंटिंग देम ऑन द अदर साइड, कि जिस डायरेक्शन में लग रही है. P कहाँ पे लग रहा है? लेफ्ट साइड पे लग रहा है ना. आई वुड रिप्रेजेंट इट हियर ऑन द लेफ्ट साइड. दिस इज द फोर्स P न्यूटन. ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस फ्रॉम द अदर साइड. ओके, तो P मैंने लेफ्ट साइड पर रिप्रेजेंट कर दिया वहां पे. ठीक है, दिस इज द फोर्स दैट्स एक्टिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अब P फोर्स क्या करेगी? इस ऑब्जेक्ट को मूव, इन दोनों बॉक्सेस को मूव करने की कोशिश करेगी लेफ्ट साइड के ऊपर. रफ सरफेस है, रफ फ्लोर है, तो फ्रिक्शन लग रही होगी, वो बैकवर्ड लग रही होगी. ये आपके फ्रिक्शन लग रही है नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक बी के ऊपर. ऑलराइट, अब और कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? इन दोनों ब्लॉक्स का मास टोटल कितना है? दिस इज 200 किलोग्राम्स, दिस इज 250 किलोग्राम्स. तो टोटल मास कितना हुआ? 4500, 450 किलोग्राम. वेट कितना हो जाएगा? वेट जो टोटल लग रहा है यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर, दैट इज 4500 न्यूटन. राइट, ये आपकी ये फोर्स लग रही है नीचे की तरफ. और कौन सी फोर्स होगी? और रिएक्शन होएगा. जब ये 4500 न्यूटन नीचे पे लग रहा है तो ऑफ कोर्स ग्राउंड बेस का रिएक्शन देगा. रिएक्शन आपका इस तरह से ऊपर वाली डायरेक्शन में लग रहा होगा. दैट्स द रिएक्शन दैट वी गॉट ऑन द ऑब्जेक्ट बी. बी के ऊपर, ऊपर की तरफ रिएक्शन लग रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट वी गॉट. अब उसने कहा है ये जो P फोर्स है ये लेफ्ट साइड पे लग रही है. अगर इसकी वैल्यू 3150 या उससे कम रहती है तो मूव नहीं करता, और जब P की वैल्यू 3150 से बढ़ जाती है तो वो मूव करने लग जाता है. इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फ्रिक्शन है, ये उसने एक तरह से एफ मैक्स की वैल्यू बताई है आपको. उसने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको बताई है कि अच्छा 3150 तक ये फोर्स लग रही होगी तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर लेगी. लेकिन 3150 से थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स होगी तो फ्रिक्शन उसको अपोज नहीं कर सकेगी और वो बॉक्सेस मूव करना शुरू कर देंगे. तो उसने एक तरह से बता दिया कि एफ मैक्स, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज 3150 न्यूटन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये कैसे आ रहा है? एफ मैक्स की वैल्यू 3150 कैसे आ रही है? डज दैट मेक सेंस? ठीक है, ओके. It says find the coefficient of friction between B and the floor. आपको पता है कि F max क्या होता है? म्यू इंटू आर. F max की वैल्यू आपको पता चल गई, दैट्स 3150 इक्वल्स म्यू. रिएक्शन कितना है? वर्टिकल फोर्स तो और कोई भी नहीं लग रही. रिएक्शन जो है यहाँ पे कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू द वेट व्हिच इज 4500 न्यूटन. तो यहाँ पे आप 4500 डाल देंगे और ये आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स 3150 डिवाइडेड बाय 4500.
and that turns out to be 0.7. ये आपको फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में. मेक सेंस? इस पर कोई क्वेश्चंस? इस पर कोई क्वेश्चंस? एनीवन? No, sir. Okay, that was the first part, right? Now the second and third parts are a bit tricky. उसने कहा the coefficient of friction between the two boxes is 0.2. अच्छा देखें, ये दो बॉक्सेस भी तो आपस में कांटेक्ट में है ना, तो इनकी आपस में भी फ्रिक्शन है. एक तो नीचे लोअर बॉक्स की ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन थी, इन बॉक्सेस की आपस में भी फ्रिक्शन है, राइट? बिकॉज दोनों रफ होंगे, दोनों की आपस में फ्रिक्शन होगी. उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? दैट इज 0.2. Coefficient of friction between the boxes, that's 0.2. It says given that P is greater than 3150. अब P greater than 3150 जिसका मतलब है कि आपके बॉक्सेस मूव कर रहे हैं, and that no sliding takes place between the boxes, तो boxes slide नहीं कर रहे हैं. Show that the acceleration of the boxes is not greater than 2 meters per second square. अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. Sliding, why would the boxes slide? Think about this. आपके पास एक बॉक्स इस तरह से है और एक और बॉक्स इसके ऊपर पड़ा हुआ है. We represent that with a different color. So you've got two match boxes, one on top of the other. अगर आप नीचे वाली मैच बॉक्स को पुश करते हो एक साइड के ऊपर और अगर आप उसको बहुत जोर से पुश कर दो, कैन यू थिंक व्हाट वुड हैपन? नीचे वाले बॉक्स को एकदम से जोर से पुश करो तो क्या होगा? ऊपर वाला बॉक्स स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, राइट? तो एसेंशियली क्या होगा? नीचे वाला बॉक्स आगे चला जाएगा और ऊपर वाला बॉक्स हो सकता है यहाँ पे कहीं स्लाइड करके नीचे गिर जाए. मेक सेंस? यही होता है ना. बॉक्स नीचे अगर आप एकदम बहुत ज्यादा पुश कर दो, ऊपर वाला बॉक्स स्लाइड करके वहीं पे रह जाएगा, नीचे वाला आगे चला जाएगा. उसने कहा ये स्लाइड नहीं हो रहा. देयर इज नो स्लाइडिंग दैट टेक्स प्लेस. इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन आप नीचे वाले के ऊपर नहीं लगा सकते. अगर ज्यादा एक्सेलरेशन होगी तो वो तो स्लाइड हो जाएगी. तो एक्सेलरेशन की कोई लिमिट होगी जिसके बाद, जिससे उससे ज्यादा अगर आपकी एक्सेलरेशन होगी तो बॉक्सेस स्लाइड कर जाएंगे. तो हमें वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिगर आउट करनी है. ठीक है, हमें वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिगर आउट करनी है कि वो कितनी होगी. Now let's think about all the forces that are acting on the two boxes. I'm just going to copy this diagram here again. अब दोनों forces, दोनों boxes के ऊपर देखते हैं कौन कौन सी forces लग रही हैं. ये हम यहाँ पे देखते हैं. Let me just copy this diagram. Okay, so these are the two diagrams that we've got. नीचे वाले box को देखें, box B के ऊपर कौन कौन सी forces लग रही हैं. We've got a force acting downwards, that's the weight of the two boxes, right? B जो floor पे लगा रहा है वो दोनों boxes का total weight है, combined weight, that's 4500 Newton. P force लग रही है left side के ऊपर, तो मैं इसको यहाँ पे represent कर रहा हूँ. This is the force P acting towards the left side. यहाँ से मैं erase कर रहा हूँ इसको. Left side पे लग रही है उधर. तो फ्रिक्शन नीचे कहाँ पे लग रही होगी? राइट साइड के ऊपर. लेट्स कॉल दिस एफ बी, जो नीचे वाले बॉक्स के ऊपर नीचे फ्रिक्शन लग रही है फ्लोर के साथ, और रिएक्शन होएगा नीचे वाले फ्लोर का ब्लॉक्स बी के ऊपर. ये भी हमने पहले रिप्रेजेंट किया हुआ था. दिस वाज आरबी और आरबी की वैल्यू इज इक्वल टू 4500. नाउ थिंक अबाउट द अपर बॉक्स. अपर बॉक्स पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? अपर बॉक्स पे एक तो इसका वेट लग रहा है. वेट नीचे लगेगा. अब देखें बॉक्स ए का वेट कितना है. बॉक्स ए जो बी के ऊपर वेट लगा रहा है दैट्स 2000 न्यूटन.
ये आपका वेट लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है? 2000 न्यूटन। अब ये जो 2000 न्यूटन बी के ऊपर वो वेट लगा रहा है, बी का रिएक्शन होगा उसके ऊपर वापस, वो लगेगा वर्टिकली अपवर्ड्स। इसकी कितनी वैल्यू होगी? दिस विल बी इक्वल टू द वेट, राइट, क्योंकि और कोई भी वर्टिकल फोर्सेस नहीं है। दिस इज आल्सो गोइंग टू बी 2000 न्यूटन। ये रिएक्शन है जो ए के ऊपर वापस लग रहा है, ठीक है। ए के ऊपर और कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? ए के ऊपर और कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? एनीवन? बॉक्सेस देखे लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, पी लग रहा है नीचे वाले बॉक्स के ऊपर, उस वजह से लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं अब, राइट। ये आपके पास सिचुएशन है, उसने कहा पी की वैल्यू 315 से 0 से बड़ी है और बॉक्सेस स्लाइड नहीं करते हैं आपस में, तो बॉक्सेस लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं। तो बी के ऊपर तो हमें फोर्सेस नजर आ रही हैं, ये वाली फोर्स लग रही है। ए के ऊपर और कौन सी फोर्स लग रही है जो हमने यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट किया अभी? एनीवन? और कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, राइट, दोनों के दरमियान फ्रिक्शन है। अब वो फ्रिक्शन किस साइड पे लग रही है? फ्रिक्शन ए के ऊपर किस साइड पे लग रही है? वो भी लेफ्ट पे लग रही है, क्योंकि अगर फिर वो राइट पे स्लाइड ऑफ हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? लेफ्ट पे। लेफ्ट साइड के ऊपर। Does everyone agree to that? ऑब्जेक्ट्स मूव कहां पे कर रहे हैं? लेफ्ट पे कर रहे हैं, फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में लगेगी। फ्रिक्शन कहां लगेगी? So we've got two possibilities, right? So either the friction is acting in this direction, or as Ibrahim is suggesting, it's acting in this direction. Right पे लग रही है, लेफ्ट पे लग रही है? Remember, boxes लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं। बी के ऊपर तो राइट पे लग रही थी नीचे फ्रिक्शन, राइट। ए के ऊपर कहां पे लग रही है? Okay. So Ibrahim is correct. Ibrahim is right there. जब बी लेफ्ट पे मूव करने लगेगा तो क्या होगा? ए विल ट्राई टू स्लाइड ऑल ऑफ हियर। ए राइट पे मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब इसको राइट पे स्लाइड करने से क्या चीज रोकेगी? इसको ये फ्रिक्शन रोकेगी जो दोनों बॉक्सेस के दरमियान में है। फ्रिक्शन इसको स्लाइड करने से नीचे रोकेगी। अब क्योंकि फ्रिक्शन इसको स्लाइड करने से नीचे रोक रही होगी, वो किस डायरेक्शन में लगेगी? लेफ्ट साइड के ऊपर लगेगी, ठीक है। तो ए के ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही होगी वो लगेगी यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर। उसने कहा है show that the acceleration of the boxes is not greater than 2 meters per second square. अब देखिए, हमें पता है जो नीचे वाला बॉक्स था उसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी थी, वो तो हमें पता है, दैट्स 3150। तो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे तो नीचे वाले बॉक्स के ऊपर तो 3150 लग रही होगी, कि मूव करते हुए फ्रिक्शन जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होती है। What about the maximum value of this friction? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? Let's figure this out. Fa की जो मैक्सिमम वैल्यू ये क्या होगी? It equals mu into r, right? Mu of the upper, mu between the boxes. Between the boxes mu कितना है उसने बताया था? This is 0.2. ये उसने बताया यहाँ पे 0.2 into the reaction. Reaction A पे कितना लग रहा है? 2000. तो ये हमारे पास कितना आ जाता है? 400 न्यूटन। एफ ए की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 400 न्यूटन। ओके, अब देखें, अब नीचे वाला ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट राइट साइड पे स्लाइड होने की कोशिश करेगा।
अब अगर तो नीचे वाले की एक्सेलरेशन बहुत ही ज्यादा है, नीचे वाले की एक्सेलरेशन अगर बहुत ज्यादा है, तो फ्रिक्शन शायद उसको काउंटर ना कर सके। फ्रिक्शन की एक लिमिटेड वैल्यू है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 400 न्यूटन, उससे ऊपर नहीं जा सकती है। व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो एफ ए बर्दाश्त कर सके कि उसको स्लाइड ना होने दे? तो इस फ्रिक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग 400 के कॉरेस्पॉन्डिंग व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन दैट वी गॉट? We can use resultant force equals mass into acceleration for this. Friction आपके पास कितनी है? 400. Mass of A, that's 200 into acceleration. जो maximum possible value of friction है, वो कितनी acceleration produce कर सकती है? Maximum. F max is 400. Mass is 200 into A max. A max की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाती है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगी तो क्या होगा? ये स्लाइड कर जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो सकती कि वो 2 से ज्यादा एक्सेलरेशन बर्दाश्त कर सके, वो स्लाइड कर जाएगा ऊपर वाला बॉक्स। डज दैट मेक सेंस? ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन लेफ्ट पे रहेगी, फिर आपने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखना है व्हाट्स द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन दैट कैन बी देयर। वो आपके पास यहाँ से 2 आ गई। ठीक है, सो दिस इज द कंफ्यूजिंग पार्ट हियर कि फ्रिक्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लग रही होगी। इन द लास्ट पार्ट इट सेज फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। जो पी लग रहा है लेफ्ट साइड के ऊपर, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी है हमें पता है 2 है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पी की वैल्यू देख लेते हैं। अब पूरे सिस्टम को देख लें। नीचे वाले बॉक्स को अगर देखें, नीचे वाले बॉक्स पे आपकी लेफ्ट साइड पे कितनी फोर्स लग रही है? पी। फ्रिक्शन कितनी है? 3150। दैट शुड इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू में पता है 2 है, तो अब यही चीज हम लोअर बॉक्स पे कर लेते हैं। ऊपर हम क्या कर रहे थे? हम ये बॉक्स ए के ऊपर देख रहे थे। नाउ वी लुक एट बॉक्स बी, जो नीचे वाला बॉक्स है, बिकॉज पी जो है बॉक्स बी के ऊपर लग रहा है। बॉक्स बी को अगर देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं बॉक्सेस, तो फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी? पी। आर एफ इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉरवर्ड फोर्सेस पी, लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं, बैकवर्ड फोर्सेस 3150। पी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मास कितना है यहाँ पे? रिमेंबर बी के ऊपर, बी जो है ग्राउंड पे दोनों मैसेस का कंबाइंड लगा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, राइट? फ्रिक्शन जो है दोनों मैसेस कंबाइन की वजह से होगी, बिकॉज वो ए जो है इसी के ऊपर पड़ा हुआ है। सो टोटल मास कितना हो जाएगा? 450 into the maximum possible value of acceleration. तो P की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 450 into 2 plus 3150, and that gives us 900 plus 3150, that's 4050 Newton. This is the maximum possible value of P there. जो 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी P की मैक्सिमम वैल्यू आती है, that is 4050 न्यूटन। ठीक है? Does this make sense? Yes, तो sir. हमने P की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली थी। P के लिए हमने नीचे वाला बॉक्स कंसिडर किया, उस पे आर एफ इक्वल्स एम ए लगा दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन वो हमने इनपुट की। so this is what we got, 4050. This is the maximum possible value of P that we can have in this case. ठीक है, can I have raise of hands for everyone again one last time?
कोई क्वेश्चन है तो बता दें, otherwise that's it. Now you should do as many questions as you can. इसकी और प्रैक्टिस करें. मैकेनिक्स का पेपर की वेटेज आप देखें काफी ज्यादा होगी इस दफा. वेटेज इन द सेंस के इन टॉपिक्स की, नॉट द पेपर, इन टॉपिक्स की वेटेज बहुत होगी, बिकॉज 2 टॉपिक्स हैं, उनसे पूरा पेपर बनना है. तो हर टॉपिक से मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे होंगे आपके पास. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दिस, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा उसमें होगी, परसेंटेज काफी ज्यादा होगी जो आपके सेंड अप एग्जाम्स में लग रही होगी. ठीक है. सो प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप उनको व्हाट्सएप पे पोस्ट भी कर सकते हैं. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे विल गेट बेटर एट इट. Yeah, this is not working for some reason. All right, so मुझे बताएं अगर कोई questions हैं तो. Otherwise, that's it. We will end here. We are done with everything then. Yes. अभी लीव सर, मेरी क्लास अभी गलती से लीव हो गई थी, पता नहीं, मुझे लगा एंड हो गया है, वो लीव हो गई थी, दोबारा से ज्वाइन किया अभी लाइक 1 मिनट पहले. हाँ. ठीक है, सही है. अटेंडेंस का भी वो मसला आ रहा है, पोर्टल का इशू आ रहा है, सो वो अभी तो नहीं मार्कस थी. I'll see that later when it starts working and again स्क्रीनशॉट and करने होंगे. yeah, so I'll do that. In fact, let me do that. Okay, yeah, so it's saved now. ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स है तो बता दे. Any other questions? Otherwise, that's it. Prepare for your exams now. कोशिश करें कि इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, फिर हम वापस अब आएंगे स्टैंड अप एग्जाम्स के बाद, तो इससे आगे कंटिन्यू करना है हमें. 3 टॉपिक्स मैकेनिक्स के और करने हैं, फिर हमें स्टार्ट्स करना है, तो उसके प्रैक्टिस अच्छी करें, तैयारी अच्छी करें, ताकि फिर आगे Sir, एग्जाम. this topic जी is जी going to बताएं. be in the mids, right? Yes, this forces and equilibrium and Newton's laws of motion, these both of these topics are part of the mid-year exams. सही है sir. ठीक है. All right, anything else? Anything else? No? All right, so we end it here then. We'll see you again during exams maybe, or afterwards. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.